جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ رب میری روزی کبھی کم نہ کرے، دولت میں کبھی کمی نہ ہو، عزت اور مال میں کبھی کمی نہ ہو، صحت میں کبھی کمی نہ ہو، وہ چاشت کی نماز کی 4 رکعت نماز نفل پڑھ لے اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے۔ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ چاشت کے نفل کے اندر رزق کی برکت کے وعدے ہیں۔ چاشت کی نفل کے اندر رزق کی برکت کے وعدے اور انوکھے وعدے ہیں۔ چاشت کے نفل پڑھنے اور نفل پڑھنے کے بعد ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنے اور اس کے بعد آمین کہہ دیں اور پھر سارا دن آمین کہتے رہیں۔ محدثین نے اسم اعظم کی جو کتابوں میں روایات بیان کی ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آمین اسم اعظم ہے۔ جو آمین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا، جو مراد مانگے گا، جو چاہت مانگے گا، صحت، عزت، دولت، رزق، خوشیاں، خوشحالیاں، راحتیں، رحمتیں، عافیتیں، جو مانگے گا اللہ آمین کی برکت سے وہ اس کی ضرورت کو غیب سے پورا ہو جائے۔ چاشت کے نفل پڑھیں اور چاشت کے نفل پڑھ کے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں بس، اور پھر سارا دن آمین کہتے رہیں، پڑھتے رہیں آمین آمین، وضو میں وضو پڑھتے رہیں سارا دن، اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے کہ مولا میری اس آمین کو قبول کر کے میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے۔ بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، گھر چاہیے، رزق چاہیے، نوکری چاہیے، دولت چاہیے، رزق حلال چاہیے، اللہ کے خزانوں سے صحت چاہیے، عافیت چاہیے، جادو بندشوں کا توڑ چاہیے، اور غیب کے خزانوں سے برکتیں، مددیں چاہیے، تو سارا دن آمین کہتا ہے، آمین 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 آمین۔ کون سا مشکل ہے؟ اور چاشت کے 4 نفل پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ صرف دے دو، صرف 10 منٹ دے دو، میری منت کرتا ہوں، صرف 10 منٹ دے دو، اور 1 منٹ لگیں گے سورۃ فاتحہ پڑھنے میں، وہ بھی 1 منٹ سے کم لگے گا، اور سارا دن آپ کیا کہتے رہیں؟ آمین پڑھتے رہیں، بس سارا دن آمین آمین کہتے رہیں۔ زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں، چند دن، چند ہفتے یہ عمل کر کے دیکھیں، رزلٹ آپ کو ہتھیلی پہ ملے گا، اور آپ کا من کہے گا کہ زندگی میں اس کو چھوڑو نہ۔ میں نے کئی ناکاموں کو کامیاب ہوتے دیکھا، میں نے کئی فقیروں کو تمنگر ہوتے دیکھا، میں نے کبھی ناکاموں کو زندگی کی کامیابیوں کے سہرے اور تاج سر پہ دھرے دیکھے، اور ایسے لوگ جو زندگی تھے عاجز تھے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ میں نے تو دیکھا ہے۔ آپ کے آج کے دن کی کامیابی یا ناکامی آپ کے ابتدائی چند لمحوں میں چھپی ہو۔ آپ روزانہ صبح اٹھ کر ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیں، آپ کا جسم، آپ کا دماغ، آپ کا دل، اس کا بوجھل پن اور بے مقصد زندگی سب ختم ہو جائے۔ صبح اٹھ کے نا صرف سانس روک کے 11 بار پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کامیاب زندگی کامیاب دنوں سے بنتی ہے، کامیاب لمحوں سے بنتی ہے، کامیاب سوچوں سے بنتی ہے، کامیاب جذبوں سے بنتی ہے، اور کامیاب صبحوں سے بنتی ہے۔ ہاں، دولت کی کامیابی، عزت کی کامیابی، وقار کی کامیابی، شان و شوکت کی کامیابی، معاشرے میں عزیز ہوں، محترم ہوں، باوقار ہوں، کامیاب ہوں، دنیا آپ کو دیکھے اور دنیا آپ کا احترام کرے۔ آپ کے آج کے دن کی کامیابی یا ناکامی آپ کے ابتدائی چند لمحوں میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ چند لمحوں میں چھپی ہوئی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ اپنی کامیابی صبح سے شروع کرتے ہیں، وہ کبھی شام سے شروع نہیں کرتے، صبح سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کی کامیابی اپنی ابتدائی چند لمحوں میں کیسے چھپی ہے؟ آپ ایک عادت اپنائیں، آپ زندگی کا اور صبح کا انداز مختلف طریقے سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لمبی عمر پانے کے 5 حیرت انگیز راز۔ کیا آپ 100 سال جینا چاہتے ہیں؟ یہ 5 راز فوراً جان لیں۔
दुनिया के इन 5 मुल्कों के लोग 100 साल से ज्यादा आखिर क्यों जीते हैं? और एक बात ज़हन नशीन रखिएगा, आज जो मैं 5 राज बता रहा हूँ उसका 5वां राज बहुत ही तवज्जो तलब है। और अगर आप पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं और वो भी 100 साल, लेकिन खुशियों के साथ, सेहत के साथ, राहत रहमत और आफियत के साथ, क्या वाकई ये मुमकिन है इंसान बगैर दवाओं के, बगैर अस्पतालों के 1 सदी जिए पूरी तवानाई, जोश और खरोश के साथ? आज के प्रोग्राम में आपको 5 राज बताऊंगा जिन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों को लंबी उम्र, भरपूर उम्र और बाइज्जत बावकार सेहतमंद जिंदगी दी। आइए हम वो 5 राज जानते हैं और जरूर जानिएगा। आज उस पहले राज का मैं इंकशाफ करूंगा। पहला राज आपकी जीन्स हैं, यानी मौरूसियत, वो खानदानी अवामिल असरात जो मौरूसियत में शामिल होते हैं। उसका जिंदगी में बहुत असर है। नस्ल दर नस्ल जो चीज खून में, रगों में, रेशों में मुंतकिल हो रही है। अगर आप ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जहां दादा दादी, नाना नानी ने 80, 90, 100 साल तक भरपूर जिंदगी गुजारी, अच्छी खबर है। इसका मतलब यह है कि आपकी मौरूसियत में लंबी उम्र का कोड मौजूद है। लेकिन यह सिर्फ इस बात का इन्हिसार करना काफ़ी नहीं कि आपकी जीन्स में लंबी उम्र मौजूद है। तहकीकात से मालूम हुआ है दुनिया में जितने भी अफराद 100 साल की उम्र तक पहुंचे हैं उनमें सिर्फ 25% ऐसे थे जिनकी मौरूसियत और मौरूसी साख्त कुदरती तौर पर मजबूत थी, जबकि 75% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी तर्ज ज़िंदगी, अच्छी आदतें, नज़्म ज़ब्त से एक बेहतरीन तवील उम्र पाई। अगर आप अपनी मौरूसी उम्र में लंबे नहीं, यानी आपकी ख़ानदानी उम्रें लंबी नहीं, तब भी आप अपनी अक्लमंदी, नज़्म, तर्ज ज़िंदगी और जो आज मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ, इससे इंशाअल्लाह, लफ्ज़ में इंशाअल्लाह इस्तेमाल कर रहा हूँ, लंबी उम्र पा सकते हैं। वो कैसे? आए मैं आपको दूसरा राज भी बताता चलूँ। दूसरा राज आपकी तर्ज ज़िंदगी है, यानी आप हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में कैसे जीते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आप सुबह की ताज़ा हवा, ऑक्सीजन लेते हैं, क्या आपका जिस्म मुतहर्रिक है, क्या दिन भर एक ही जगह बैठे रहते हैं या आप चलते फिरते भी हैं। तहरीक आपके जिस्म में है, आपके जोड़ों में है, आपकी रगों में है, आपके पट्ठों में है, आपके असाब में है। आप अपनी नींद, खुराक, ये छोटे छोटे राज बता रहा हूँ, राजों में राज हैं, और दिमागी सुकून की फिक्र कैसे करते हैं, यही छोटी आदतें आपको आने वाली जिंदगी में बताती हैं। यही छोटी आदतें आपको आने वाली जिंदगी में बताती हैं, और ये बात पूरी दुनिया की तहकीकात से साबित हो चुका है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े साइंसदान इंसानी जिंदगी पर रिसर्च और तहकीक कर रहे हैं, उनमें एक चीज़ मुश्तरक है, वो है सादा मुतवाज़िन तर्ज ज़िंदगी। ऐसी ज़िंदगी जिसमें तंबाकू या सिगरेट का, और तंबाकू किसी भी शक्ल में, पान बीड़ी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, दूसरा शराब, नशा, तीसरा रूहानी जिस्मानी सरगर्मियाँ कि आपकी 30 मिनट की सैर, हल्की वर्जिश ज़रूर होनी चाहिए। पूरी और गहरी नींद जिस्मानी सेहत की बहाली का सबसे कुदरती ज़रिया है। ज़हनी सुकून, तनाव से बचना, क्योंकि जो दिल और दिमाग में सुकून रखते हैं वही लंबी ज़िंदगी जीते हैं, और सुकून उसको मिलता है जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल रखता है। एक बहुत बड़े साइंसदान ने एक बात कही थी, और ये पूरी दुनिया में ये बात साबित है, वो ये है कि अपने आप को माफ़ करो और लोगों को माफ़ करो। तो पूछा अपने आप को माफ़ कैसे? कहा कि अल्लाह ने मुझे जो ज़िंदगी दी है, अगर गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, रईस हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, तो मैंने इसी में जीना है और बेहतरीन अंदाज से जीना है। और दूसरों को माफ़ करना तो आप जानते ही हैं।
जो शख्स ज़हनी सुकून में रहता है वही लंबी जिंदगी पाता है। और एक सादा उसूल याद रखिएगा, अगर आप अपनी जिंदगी को संभालेंगे तो जिंदगी खुद आपको संभालेगी। और अगला राज मैं जो बयान करना चाहूंगा वह है मुतवाज़िन ग़िज़ा, साइंस और सेहत का राज। वो आपकी ग़िज़ा में छुपा है जो आप रोज़ खाते हैं। बकौल एक बहुत बड़े आदमी के, ये ज़रूरी नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि हम ये देखें जहां हलाल खाना ज़रूरी है वहां ये खाना भी ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं। क्या हर हलाल चीज़ खाते चले जाएं? जिस्म का हक नहीं। जिस्म को भी कोई हक है कि जिस्म कहता है मुझे क्या खिला रहे हो। अपनी ग़िज़ाओं पे नज़र रखें। आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ग़िज़ाओं की शक्ल में। अपनी हर ग़िज़ा पे नज़र रखें। आइए जापान की मिसाल लेते हैं। ये वो मुल्क है जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा 100 साल के अफराद जी रहे हैं और उनकी ज़िंदगी तवील उम्र के राज उनके पास मौजूद है। तहकीकात कहती हैं उनकी तवील उम्र का राज किसी दवा, जादू और जादुई कोई तिलिस्माती दुनिया नहीं, बल्कि 3 सादा मगर बाकमाल आदात है। अब वो आदात आपको मैं बयान कर रहा हूं और आप फौरन सुन्नत नबवी की तरफ चले जाएं और सोचें। पहली आदत, उस वक्त खाना छोड़ देते हैं जब पेट अभी 80% भरा हुआ होता है। ये पहली आदत है। मैं इसको फिर दोहराऊंगा, उस वक्त खाना छोड़ देते हैं जब पेट अभी 80% भरा होता है, यानी पेट भरकर खाना नहीं खाते बल्कि खुद पर काबू रखते हैं। यही हमारी सुन्नत का राज। वो अपने पेट के 3 हिस्से, खाना, पानी और सांस। दूसरा, वो खाने में ज्यादातर कच्ची सब्जियां, ताज़ा फल, उबले हुए अनाज। और एक बात ज़हन नशीन रखिएगा, ये सब्जियां, फल, अनाज वो होते हैं जो सबसे सस्ते हों, वो तलाश करें। उनका खाना सादा और कुदरती होता है जो दिल, दिमाग, पट्टे, आसाब और जहन को सुकून देता है और जिस्म को तकवीयत देता है। अगला जापानी राज बताता हूं और वो गौर से सुनिएगा। खाने को आहिस्ता और तसल्ली से चबा कर खाते हैं, जल्दी नहीं। जिस्म पर बोझ बन जाता है। जब तसल्ली के साथ आहिस्ता आहिस्ता